Hello everyone, welcome to Learning Warrior classes. Now today we are going to see environmental studies, very important MCQ study material for scoring out of marks. This can be asked this year in your TET exam, in your CTET exam. So this all the questions will definitely help you. First, Sanjay of class 5th usually does not submit his assignment to the EVS teacher in time. The best corrective measure could be to A. Bring it to the notice of the principal. B. Stop him from going to the games class. C. Find out the reasons for irregularity and counsel Samir. D. Write a note to parents about his irregularity. So now here are four options. So we can say the best option is find out the reason for irregularity and counsel Samir. Yes, because if you find any students he is not doing studying and not submitting anything, means he is not focusing on the study. So we should find out the reason that why he is irregular to his study. So we should counsel them. So from that we will know the problems and we will find the remedial teaching. Next, while teaching how different food items can be kept fresh for some time, Meenakshi enumerated the following techniques to her class. First, put in a bowl and keep the bowl in an open container having cold water. Second, wrap it in a damp cloth. Third, spread it open in sunshine. Fourth, cut it into small pieces and keep it in the dark. Which one of the following food items is she referring to corresponding to technique second above? Okay, A option is cooked rice, B onion garlic, C green coriander, D kaju barfi. So now from the given question only we come to know that option A is wrong because we never kept cooked rice in a damp cloth. Onion and garlic we are keeping in dry place, so that's why it is also wrong. And kaju barfi, it is not applicable in this option only, so our right answer is green coriander. Yes, we are keeping in a damp cloth, spread it open in sunshine and cut it into small pieces and keep in a dark room to protect them. Okay, so here option C is correct. Next, while teaching the topic friction to class 5 student, a teacher gave a number of examples to explain that friction is also useful to us in many ways. Which one of the following example was quoted by her incorrectly? A. We are able to write due to friction between the tip of the pen and the paper. B. We are able to walk because of friction between our shoes and the ground. C. An object thrown vertically upward always comes back to us due to friction. D. A vehicle stops on application of brakes. So from this question हमें क्या पता करना है? फ्रिक्शन क्लास 5 से रिलेटेड है. सो टीचर कौन से एग्जांपल्स देगी एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट. यस, सो सबसे पहले हम ये मार्क कर लेते हैं. हमें आइडेंटिफाई करना है कि फ्रिक्शन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो जैसे कि हम दे सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो करेक्ट है. वी आर एबल टू राइट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड द पेपर. यस, तो ये इनकरेक्ट तो नहीं हो सकता बिकॉज ये राइट सही जवाब बोला गया है फ्रिक्शन से रिलेटेड. बी दिया है वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आर शूज़ एंड द ग्राउंड. ये भी राइट है. फ्रिक्शन की वजह से ही हम प्रॉपरली वॉकिंग कर सकते हैं. वी आर नॉट फीलिंग स्लिपरी. C. An object thrown vertically upwards always come back due to the friction. नहीं, ये फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं है. ये हमारा ग्रेविटेशनल रूल है. ये फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं होगा. एंड ऑप्शन डी, अ व्हीकल स्टॉप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स. जब भी स्पीड को कम करना रहता है तो हम उसमें क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं. तो जो व्हीकल्स हमारा स्टॉप होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है. सो ये ए बी डी ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है फ्रिक्शन से. एंड हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट. सो इनकरेक्ट है ऑप्शन सी बिकॉज ये सी वाला ऑप्शन वर्टिकली अपवर्ड ऑलवेज कम टू ड्यू टू द फ्रिक्शन इज़ रॉन्ग बिकॉज वर्टिकली ऊपर गई हुई कोई भी चीज़ जो नीचे आती है वो आती है ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण की वजह से. सो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. फोर्थ,
A teacher can identify a stressed child when the child shows the following behavior. तो अभी हम टीचर को कैसे पता चलेगा कि जो बच्चा है वो स्ट्रेस में है, तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है। ए एग्रेसिव बिहेवियर, बी फुल कंसंट्रेशन इन स्टडीज़, सी एक्सेसिव टॉकिंग, डी हाइपर एक्टिविटी। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो फुल कंसंट्रेशन इन स्टडी, इससे बच्चे को स्ट्रेस नहीं होगा, इससे तो बच्चा का अच्छा होगा ना, उसका टाइम टू टाइम मैनेजमेंट होगा, सब स्टडी अच्छे से होगी। सो बी यहाँ पर राइट नहीं है। सी एक्सेसिव, सी ऑप्शन है एक्सेसिव टॉकिंग, टॉकिंग बच्चों को बोलने से स्ट्रेस होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एंड डी है हाइपर एक्टिविटी, तो हाइपर एक्टिविटी से भी स्ट्रेस नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोर्थ का आंसर है ए। स्ट्रेस टीचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ स्टूडेंट्स आर बिहेविंग एग्रेसिव, अगर बच्चा चिड़चिड़ गुस्सा कर रहा है तो इससे पता चल जाएगा टीचर को। फिफ्थ, which one of the following 4 teaching methodologies followed by 4 different science teachers for teaching the topic air pollution is most appropriate? तो अगर टीचर को सिखाना है एयर पोल्यूशन टॉपिक, तो ये 4 हमें दिए हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, एंड यहाँ पर कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट? यस, सो अब हम देखेंगे ऑप्शन ए, डिक्टेटिंग द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक। ये तो टीचर सेंटर मेथड हो गई, तो इससे तो हम पढ़ाएंगे नहीं। डिक्टेट करना, टीचर डिक्टेट करती जा रही, बोलती जा रही है, एंड बच्चे जो इसे नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये हम नहीं फॉलो करेंगे। ऑप्शन बी, शोइंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन एयर पोल्यूशन टू द स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी, आस्किंग द स्टूडेंट टू कलेक्ट एयर सैम्पल्स बिफोर एंड आफ्टर दिवाली, स्टडी देयर क्वालिटी एंड टैबलेट द फाइंडिंग्स। D, asking the student to read the topic from the textbook loudly and explaining the meaning of concepts term. सो ये रोट लर्निंग को हमने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया है, हम उसको बिल्कुल ही नहीं करते हैं। यस, हम लर्निंग बाय डूइंग पे फॉलो करते हैं, तो डी ऑप्शन कट हो जाएगा कि बच्चा को अगर रीड लाउडिंग कर भी रहा है तो उसको क्या समझ में आएगा। दिस स्टेटमेंट्स इनअप्रोप्रिएट। अभी हम बी और सी में देख लें तो बी जवाब हो सकता था, बट इसके मुकाबले हम देखें तो सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। दैट आस्किंग द स्टूडेंट्स टू कलेक्ट एयर सैम्पल्स बिफोर एंड आफ्टर दिवाली, स्टडी देयर क्वालिटी एंड टैबलेट द फाइंडिंग्स। यस, जो सी ऑप्शन है यहाँ पर ये बिल्कुल ही सही जवाब है, बिकॉज यहाँ पर बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। दे विल फाइंड द सैम्पल्स, दे विल इवेलुएट देमसेल्फ। यस, तो खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे, खुद क्वालिटी एंड क्या है उसको स्टडी करेंगे एंड खुद फाइंडिंग करेंगे, तो यहाँ पर लर्निंग एंड बाय डूइंग को जो है ज़्यादा इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलेगा। सो दिस ऑप्शन विल बी बेस्ट फॉर टीचिंग एयर पोल्यूशन टॉपिक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। While performing experiments with water, Jyoti observed that an empty steel bowl floats but a small iron nail sink in water. This can be explained by the fact that A. Iron is lighter than water and steel heavier is than water. B. Force on a steel bowl is more than its whereas force on an iron nail lesser is than weight. C. Force on an iron nail is more than its weight whereas force on a steel bowl is lesser than its weight. D. Iron is heavier water and steel is lighter than water. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 इसका सही जवाब है बी, force on a steel bowl is more than its whereas force on an iron nail lesser is than weight. So iron nail जो है उसका क्या होगा, lesser weight होगा। That's why option B is correct in the question number 6. Question number 7. All big cities are facing the problem of environmental pollution as a result of a large number of vehicles on the roads. The best way an individual in the city can contribute towards environmental protection is by यस तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आजकल सब बिग सिटीज़ में जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया है बिकॉज लार्ज नंबर्स ऑफ व्हीकल्स। यस, रस्तों पे गाड़ी आजकल बढ़ गई है, पोल्यूशन पॉपुलेशन जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा लोग व्हीकल्स गाड़ियाँ लेकर रास्ते पे चल रहे हैं। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूट रहेगा? तो यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम यहाँ से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ए, getting the engine of personal vehicle check regularly for environmental safe limits. B, using a public transport system for traveling. C, avoiding frequent travel outside the home. D, not keeping a personal vehicle like scooter, car, etc. So not keeping ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना कोई सॉल्यूशन हो गया। यूजिंग अ पब्लिक अवॉइडिंग फ्रिक्वेंट ट्रैवल आउटसाइड द होम। अभी कभी हमें कुछ ज़रूरी काम है तो हम उसको अवॉइड तो कर नहीं सकते, हमें इससे बेहतर कोई जवाब ढूंढना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पर गेटिंग द इंजन ऑफ पर्सनल व्हीकल चेक्ड,
यस, चेकिंग करना इज़ गुड, बट यहाँ पर हम देखा जाए तो बेहतरीन ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर बी, यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रैवलिंग। यस, एज अ सिटीजन व्हाट इज़ योर ड्यूटी, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, यस आप कैसे कर सकते हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। सो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करेंगे। सो इससे एयर पोल्यूशन और डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन में, लाइक साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, while teaching the topic on air, an English teacher wanted to demonstrate air has weight and occupies space. Her colleague suggested the following 4 different activities for this purpose to her. First, place an empty inverted beaker on the surface of the water and start pressing it down. Second, suck the juice through a straw. Third, blow air in a balloon. Fourth, tie 2 inflated balloons to a rod and establish equilibrium. Then puncture all of the balloons. Which of the above activities will lead to demonstrating the desired result? सो यहाँ पर ए बी सी डी दिए हैं, कौन सा राइट है हमें ऊपर से रीड करके बताना है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 8 इसका राइट आंसर है बी, मतलब यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट फोर्थ राइट है। इफ़ टीचर को क्लास में एयर से रिलेटेड पढ़ाना है तो उसने क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट करके, यस डेमोन्स्ट्रेट करके टीचर जो पढ़ाएगी बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। तो उससे एयर से रिलेटेड कौन से हैं 2 डेमोन्स्ट्रेशन। पहला है प्लेस एन एम्प्टी इन्वर्टेड बीकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड स्टार्ट प्रेसिंग इट डाउन। यस, तो जब टीचर जो प्रेस करेगी तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इससे टीचर एक्सप्लेन कर सकती है कि एयर को क्या होता है, वेट होता है। यस, और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। जब ग्लास को हम इन्वर्टेड करते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज होने लगता है, दैट्स वाई वाटर क्या होता है, फ्लो करने लगता है। एंड द लास्ट फोर्थ ऑप्शन, टाई 2 इन्फ्लेटेड बलून्स टू अ रॉड एंड एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम एंड देन पंक्चर ऑन ऑफ द बलून। यस, बलून्स में जो है एयर भरी रहती है, बट जब हम उनको पंक्चर करते हैं तो बलून का देखिए वेट जो है कम हो जाएगा और उसका साइज़ भी। तो इससे हम बता सकते हैं कि एयर हैज़ अ वेट एंड उसको एक स्पेस जगह ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, इसलिए हमारे यहाँ पर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, while teaching topic on air is everywhere, a teacher asks the following questions from the student. Is there air in the soil? Is there air inside water? Is there air inside our body? Is there air inside our bones? Which one of the following skill is the teacher trying to develop in the learners? A, classification skill. B, thinking skill. C, emotional skill. D, observation skill. Yes, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन स्किल्स। टीचर देखना चाहेगी बच्चे का ऑब्जर्वेशन कहाँ है। सॉइल में जो बच्चा सॉइल के टॉपिक को स्टडी करता है तो बच्चा देख पाता है नहीं, उसको वो लिंक लगा पाता है कि नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन किस हद तक है कि एयर वाटर बॉडी बोन्स में एयर किस हद तक रिलेटेड है। तो वो कब होगा, जब बच्चे का ऑब्जर्वेशन होगा। सो ऑब्जर्वेशन स्किल्स टीचर डेवलप करना चाहती है, इसलिए वो डिफरेंट ऐसे क्वेश्चन पूछेगी जिससे बच्चे जो है ऑब्जर्वेशन करने के लिए ध्यान दें। Question number 10. The major purpose of periodic parent-teacher interaction is to. Yes, आजकल स्कूल में से पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो ये इंट्रैक्शन जो रखा जाता है स्कूल में, इसका मेजर पर्पस, यस मेन क्या रहता है, मेन एम क्या रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। ए, शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑन गोइंग इवेंट्स इन द स्कूल, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, हम पेरेंट्स को बुला के ऑन गोइंग इवेंट्स तो बताते नहीं हैं। बी, डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर रीइंफोर्समेंट एंड इम्प्रूवमेंट, बच्चे के जो कमियां हैं, जो मतलब उसकी कमज़ोरी है, जो भी उसको पॉजिटिव पॉइंट्स है वो डिस्कस करना पेरेंट्स के साथ, उनको शाबाशी देना बच्चों को। सो रीइंफोर्समेंट यस, एंड इम्प्रूवमेंट करने के लिए डिस्कशन करना यस, बिकॉज कुछ हद तक टीचर को भी बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, तो पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन एक अच्छा ज़रिया होता है बच्चे के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, बिकॉज आगे के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सी, डेवलप अ सोशल रिलेशनशिप विद ईच अदर, यस रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए पेरेंट्स को नहीं बुलाया जाता है, इसलिए सी रॉन्ग है। हाईलाइट ईच अदर्स शॉर्टकमिंग्स, नहीं शॉर्टकमिंग को हाईलाइट करने के लिए नहीं होता है, तो ये भी गलत है, इसलिए इसे भी यहाँ पर रोक दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है बी, डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कुकिंग प्रैक्टिस। तो अभी गुड कुकिंग कौन सी है, उसमें से हमें एक बेस्ट चूज़ करना है। यस, ए ऑप्शन दिया है। वॉशिंग द वेजिटेबल नाइसली एंड देन कटिंग। यस, नॉर्मली जब हम घर में बाहर से वेजिटेबल्स लाते हैं तो फर्स्ट उसको हम वॉश करते हैं, देन उसको हम कट करते हैं। बी दिया है ऑप्शन, कटिंग द वेजिटेबल्स एंड देन वॉशिंग दिस इन रनिंग वाटर। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है, बिकॉज आप सभी को पता है कि अगर हम वेजिटेबल्स को कट करने के बाद अगर उसको वॉश करते हैं तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, दैट ऑल विल बी वाइप्ड अवे। सो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ये गुड कुकिंग नहीं होगा, बिकॉज इसमें बच्चों को जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी वेजिटेबल्स से मिलने वाले मिनरल्स है, वो तो सब वॉश आउट हो जाएंगे, तो फिर ये तो बिल्कुल ही गुड कुकिंग नहीं है। सी, कीपिंग द वेजिटेबल्स इन सनशाइन फॉर सम टाइम बिफोर कटिंग एंड कुकिंग। अगर हम वेजिटेबल्स को सनशाइन में रख दें, वो धूप से जो पत्ते हैं, कंसिडर करो लीफी वेजिटेबल्स है, वो तो पूरी सूख जाएगी, उसके अंदर का पूरा पानी ही निकल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि सनशाइन में रखना चाहिए। ऑप्शन डी, कुकिंग दी वेजिटेबल्स बाय डीप फ्राइंग टू किल बैक्टीरिया। अब डीप फ्राई तो हम कभी करते नहीं, ज़्यादा ऑयली फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता ही नहीं है, तो ये गुड कुकिंग प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी गलत है। तो यहाँ पर हमें मिलता है हमारा ऑप्शन ए। 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वॉशिंग द वेजिटेबल नाइसली एंड देन कटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A science teacher administered a test after teaching the topic on respiration and observed that the majority of the students did not understand the difference between respiration and breathing. This could be due to the reason that, तो यहाँ क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक साइंस टीचर है जो बच्चों को टॉपिक सिखा रही है रेस्पिरेशन, एंड वो नोटिस करती है कि बहुत से जो बच्चे हैं वो रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दोनों के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ पाए। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा? A. She could not explain the related concept effectively in the class. B. She was not their class teacher. ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्लास टीचर हो या ना हो, जो भी टीचर पढ़ा रही है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज लेकर ही पढ़ाती है, तो वो ऐसा क्लास टीचर हो या सब्जेक्ट टीचर हो, कोई भी टीचर हो, दैट्स डज नॉट मैटर। तो ये बी बिल्कुल ही गलत जवाब है। C. The students could not understand the question correctly. नहीं, यहाँ पर तो क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रिलेटेड बात हुई है, तो ये सी भी कुछ खास इतना नहीं है। डी, देयर वॉज यूजुअली लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन इन हर क्लास। अब हम यहाँ पर देखें तो ए और डी में तो बेस्ट जो आंसर है वो है ए, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच का डिफरेंस नहीं बता पा रहे, मतलब कहीं तो उनके कॉन्सेप्ट्स में लैकिंग हो रही है, दे हैव नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स आ रहा है, कहाँ पर दैट टीचर नॉट एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। टीचर उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में कहीं तो पीछे रह गई है, या फिर उसने जो मैथोडोलॉजी यूज़ की है उससे बेहतर वो मैथोडोलॉजी यूज़ करके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकती थी। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा शी कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, which one of the following 4 sequences of process has to be used? ओके, तो यहाँ पर हमें सेपरेशन मेथड करनी है, सेपरेट करना है दो चीज़ों को जो है सैंड एंड सॉल्ट। तो हम कौन सी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे? यस, यू कैन सी यहाँ पर ऑप्शन दिए है ए बी सी डी। यस, यू कैन रीड। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए। फर्स्ट वी हैव टू डू फिल्ट्रेशन, डिसेंटेशन, देन इवेपोरेशन एंड सेडिमेंटेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, अगर आपको सैंड एंड सॉल्ट को अलग करना है सो आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। गीता's friend suggested the following 4 ways to avoid tooth decay. First, brush your teeth twice a day. Second, wear braces to avoid enamel decay. Third, avoid sweets, chocolates and carbonated drinks. Fourth, rinse mouth after every meal. सो अब हम यहाँ देख ले तो यहाँ पर राइट आंसर 14 का है वो है बी। अब क्यों बी है हम वो भी देखेंगे। अभी देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे, टीचर हमें हमेशा सिखाती रहती है कि अगर आपको टूथ डेके से अपने दांतों को अच्छा रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ट्वाइस अ डे वी हैव टू ब्रश आते। तो ये एकदम राइट जवाब है। फिर सेकेंड ऑप्शन दिया है वेयर ब्रेसेस टू अवॉइड एनिमल डेके।
यस, तो ब्रेसेस पहनने से एनिमल डे के हो ऐसा तो कुछ है नहीं। सो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है कि जो ब्रेसेस नहीं पहनते हैं उनके डीके होते हैं, ऐसा तो है नहीं। ब्रेसेस जो है वो अलग चीज़ है। यस, तो उसमें इसको मिक्स ना किया जाए। थर्ड है अवॉइड स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। यस, ये भी बिल्कुल सही है। जितना ज़्यादा आप स्वीट्स खाओगे, चॉकलेट्स खाओगे, तो आपका टूथ का क्या होता है, डीके होता है। सो हमें ये अवॉइड्स करना चाहिए। सो ये राइट है थर्ड वाला ऑप्शन। एंड लास्ट वन इज रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील। यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि हमें क्या करना चाहिए, रिंस आउट करना चाहिए। यस, आफ्टर ईटिंग एवरी फूड हमें क्या करना चाहिए, मुंह से पानी से उसको क्या करना चाहिए, अपने टिथ, हमारे जो टिथ है वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी पार्ट स्टक ना हो। यस, अगर कोई भी पार्ट माउथ में रह गया तो वहीं से स्टार्ट होती है आपकी टूथ डेकिंग प्रोसेस। यस, सो दैट्स वाई आफ्टर ईटिंग एवरी मील, यस, इफ यू आर ईटिंग चॉकलेट्स अ सिंगल थिंग ऑल्सो, देन ऑल्सो यू हैव टू रिंस योर माउथ प्रॉपरली. So that's why option B is correct here. An air pump is kept in aquarium in order to. अब यहाँ एक्वेरियम जहाँ पर फिश होती है तो हम वहाँ पर एयर पम्प क्यों रखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कि राइट कौन सा है। मेक वाटर क्लीनर, बी प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर प्लांट्स, सी अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिसॉल्व इन वाटर, enhance the beauty of the aquarium. सो ब्यूटी के एक्वेरियम, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ब्यूटी से रिलेटेड नहीं होता है पंप। फिर उसके बाद हमें पता है कि एक्वेरियम में कौन रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश। तो एक्वेरियम में फिश रहते हैं, तो फिश आर ऑल्सो लिविंग थिंग, सो दे विल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। यस, तो ये जो बी है कार्बन डाइऑक्साइड वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मेक वाटर क्लीनर भी गलत है, तो यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर। यस, बिकॉज हमें पता है कि एक्वेटिक एनिमल जो है वाटर के अंदर की ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। यस, दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग, तो वाटर की ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन जो लेवल है कम होता जाता है। बट विदाउट ऑक्सीजन फिश ऑल्सो कांट सर्वाइव, तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन पंप से दी जाती है ताकि फ़िश को कंटिन्यूसली जो है ऑक्सीजन मिलता रहे। तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर जो है राइट है सी, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर बाय ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो. यस, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि उन्होंने एनिमल्स दे लिजर्ड, स्पैरो, टर्टल, स्नेक, तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं. यस, दे आर पॉइजनस, अभी पॉइजनस तो नहीं है. यस, बिकॉज अगर स्नेक को हम अगर पकड़ भी लेते तो लिजर्ड, स्पैरो, टर्टल, ये हमें पता है कि ये क्या है, पॉइजनस नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. बी है दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. अगर आप टर्टल की बात करते हैं, स्नेक की बात करते हैं, तो ये सही भी हो जाता है, बट हमें यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखना है. तो लिजर्ड और स्पैरो तो वाटर में रहते नहीं हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका. देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल्स. देखो यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को ट्विस्ट करने की कोशिश की है, बट आप भी ध्यान से समझ कर पढ़िए. जैसे यहाँ पर इन्होंने स्केल्स बोला है, तो अभी हमें पता है स्केल्स किसको होते हैं. यस, ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, यस, क्रोकोडाइल. यस, तो अभी यहाँ पर जो स्पैरो होते हैं उनको तो स्केल्स होते ही नहीं है, सो उनके बॉडी से कवर्ड होंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाएगा. तो यहाँ पर ए बी सी तीनों रॉन्ग हो गए. यस, तो यहाँ पर इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. यस, 16 का आंसर हमारा है डी, दे ले एग्स. यस, दे ले एग्स. लिजर्ड भी एग्स देते हैं, स्पैरो भी, टर्टल भी, स्नेक भी. सो दिस इज द वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन 4 ऑफ देम. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस occurs both in plants and animals. Option A, growth and food making, B, reproduction and found making, option C, reproduction and germination, option D, growth and reproduction. So अभी हमें दोनों में देखना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होना चाहिए. तो अभी जैसे हम देखते हैं कि फूड मेकिंग जो है वो तो सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं, एनिमल नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही हमारा सही जवाब नहीं होगा. यस, ये गलत हो जाएगा. देन रिप्रोडक्शन एंड फाउंड मेकिंग, ये भी एक गलत जवाब है, ये भी रिलेटेड नहीं है दोनों से. देन रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, यस, तो हमें देख पता है कि जो जर्मिनेशन है वो प्लांट्स में होता है बट एनिमल्स में नहीं होता है. यस, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट है वो है
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में भी ग्रोथ होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स में भी होता है। सो यहाँ पर दिस ऑप्शन डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द वर्ड्स इंटीमेटली रिलेटेड। अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो रिलेटेड कौन से हैं। सो यहाँ पर ए देखेंगे, मॉस्किटो, मलेरिया, अनेमिया, एनीमिया, आयरन। सो अभी एनीमिया और आयरन तो रिलेटेड हम बोल सकते हैं, यस रिलेटेड टू ब्लड से है, बट मॉस्किटो मलेरिया उसमें यह आ गए, यस डिफरेंट डिजीज़ आ गए। तो उसके बाद बी दिया है आयरन, मलेरिया, एनीमिया, ब्लड। थर्ड दिया है आयरन, हीमो, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यस। सो आयरन, एनीमिया एंड आंवला। एंड ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है मॉस्किटो, डेंगू, आयरन, जैगरी। सो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, यस यहाँ पर ऑप्शन सी का ब्रैकेट है वो। सो आयरन, एनीमिया, आंवला, यस। जब भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, यस, तो हम क्या खाते हैं, आयरन वाली फूड्स खाते हैं। सो इससे रिलेटेड ये जो है एनीमिया से ही रिलेटेड है, यस आपकी बॉडी में ब्लड का कम होना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ एनीमिया। एंड उस वक्त हम क्या खाते हैं, आंवला खाते हैं, जैगरी खाते हैं, यस। सो दिस ऑप्शन विल बी रिलेटेड, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑफ 18। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ फिश डाइज व्हेन इट पुट इन एन एक्वेरियम filled with previously boiled water but cooled to room temperature. This happened because the water in the aquarium is. अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एक एक्वेरियम का पानी जो है, वाटर जो है, उसको बॉयल किया गया था पहले एंड फिर उसको रूम टेम्परेचर पे कूल कर दिया है, बट उसके अंदर की फ़िश डाइज हो गई। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? ए, अनफिट फॉर स्विमिंग बाय फिश, स्विमिंग करने के लिए फ़िश अनफिट हो गई, ये बोला है। बी, डिप्लेटेड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल्स जो है वो डिप्लेट हो गया, कम हो गया, ख़त्म हो गया है। सी, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, फिश वाटर ड्रिंक नहीं कर पाए इसलिए डाइज हो गई। डी, डिप्लेटेड इन मिनरल्स। सो अभी हमें पता है यस फिश जो होते हैं वो होते हैं लिविंग थिंग, एंड लिविंग थिंग नीड्स ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन दे कांट सर्वाइव। एंड जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर की जो ऑक्सीजन्स होती है वो डिप्लेटेड, लो, कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे वाटर में अगर हम फिश को रखेंगे तो दे कांट सर्वाइव, सो दैट्स वाई फिश डाइज इन दैट वाटर। सो दैट इज़ अ रीज़न, एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। सो अभी हमें मून से रिलेटेड थोड़ी जानकारी होगी तो हम इसका आंसर जल्दी से दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, नो एयर, नो ग्रेविटी, स्मूथ सरफेस। मून पे जो है एयर नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, एंड सरफेस जो है स्मूथ है, ये बोला गया है। बी बोला गया है नो वाटर, इनफ एयर, हाई माउंटेन्स। सी है नो वाटर, डीप क्रैटर्स, हाई माउंटेन्स। डी है नो एयर, नो ग्रेविटी, नो वाटर। ओके, सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है सी राइट है, यस, बिकॉज नो एयर नो ग्रेविटी तो नहीं बोल सकते हम, मून पे नहीं है, यस। बट जो मून है उसके जो मून का जो है वो देखा गया है दैट वहाँ पर कैसे होते हैं डीप क्रैटर्स, क्रैटर्स यानी जो फ्लोर जो है एकदम सपाट समतल नहीं है, वहाँ पर उबड़ खाबड़ है, उसे क्रैटर्स कहा गया है। तो मून पे वाटर नहीं है, वहाँ पर डीप क्रैटर्स भी है एंड हाई माउंटेन्स भी है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, श्यामली's mother adds फिटकरी अल टू द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। अभी पॉन्ड वाटर लिया गया है, उसमें फिटकरी अल डाल रहे हैं श्यामली की मदर, तो वो ऐसा क्यों कर रही है, तो इसका रीज़न हमें बताना है। चारों में से कौन सा सही है? ए, डी कलराइज द वाटर, वाटर का जो कलर दिख रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। बी, सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ है उसको सेडिमेंट यानी वो लोअर जो है उसका जो भी तल है उसके नीचे पे आ जाए, जो भी इम्प्योरिटीज़ है सेडिमेंट बन के। सी, चेंज हार्ड वाटर इनटू अ सॉफ्ट वाटर, पॉन्ड का जो वाटर है हार्ड वाटर है तो उसको कन्वर्ट करना है सॉफ्ट वाटर में। और डी, किल जर्म्स इन वाटर, वाटर में जो भी जर्म्स है उनको किल करने के लिए।
सो आई होप आप सभी को आंसर मिल गया होगा। इसका राइट आंसर है बी। यस, ये हम नॉर्मली जब बारिश का दिन होता है तब भी करते हैं। यस, उस समय पानी जो होता है वो अच्छा साफ़ सुथरा नहीं आता, उसमें डर्ट एंड जर्म्स होते हैं। तो हम ये फिटकरी अलम यूज़ करते हैं, जिससे पानी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इन द सेंस, जो भी पार्टिकल्स है वो नीचे के लेवल पे, लोअर लेवल पे आ जाती है, एंड उससे क्या होता है, आपका वाटर प्योरीफाइड हो जाता है। सो हम ऑप्शन बी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, weightlifters are generally required to make more muscles and body mass. For this purpose, they need to take a diet which is rich in. अभी जो वेट लिफ्टर हैं उनको मसल्स बॉडी मास बढ़ाना है, तो उनको किन चीज़ का इनटेक ज़्यादा खाना पड़ेगा? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स। तो यहाँ पर हम सभी को पता है, इफ़ यू वांट टू मेक योर मसल्स बॉडी, तो हम प्रोटीन्स पाउडर भी देखो आते हैं प्रोटीन्स के, हम एग ये सब मिल्क ये सब चीज़ें खाते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मसल्स एंड गेन वेट करना है या वेट लिफ्टर्स मसल्स एंड बॉडी मास इंक्रीज़ करना है, तो हम प्रोटीन्स ऑप्शन सही है, इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुड ईवीएस करिकुलम शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, true to life and true to the subject. Which of the following characteristics of a curriculum does not meet the above requirement? तो अभी हमें यहाँ पर जो रॉन्ग सेंटेंस है, डज नॉट मीट, करिकुलम से जो मैच नहीं करता है वो पता करना है। इट प्रमोट द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फ्रॉम अस। ओके, सो जो करिकुलम है वो फ्रीडम देता है, ऑफकोर्स फ्रीडम देता है बच्चों को, लर्निंग बाय डूइंग ही हमने बोला गया है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। बी, इट रिक्वायर द लर्नर टू व्यू दिस सब टाइप। यस, लर्नर्स के जो व्यू पॉइंट्स है, उनकी जो भी थिंकिंग है उसको भी इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये भी सही है। सी, इट एम्फसाइजेस मोर ऑन प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ऑफकोर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एम्फसाइज किया जाता है। आपकी जो मेथड है करिकुलम उसको रिफ्रेम किया गया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि टीचर सेंटर्ड नहीं, इट शुड बी अ लर्नर सेंटर, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी by a more concentrated on the learners से हमें ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है, उनको लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने हैं। सो ये भी करेक्ट हो गया, और हमें पता करना था डज नॉट, लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है इट एम्फसाइज मोर ऑन टर्म्स एंड डेफिनेशन। ये बिल्कुल ही गलत जवाब है, तो हमें डज नॉट पूछा गया था, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। यस, बिकॉज हमारा जो करिकुलम है वो टर्म्स एंड डेफिनेशन के ऊपर नहीं, रट्टाफिकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं देता। हमारा अभी का जो करिकुलम है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यस, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए देता है। तो मोर ऑन टर्म्स एंड डेफिनेशन ये सब बिल्कुल ही गलत है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। Prabha wants to introduce the topic on animals friends to class 3rd students. In order to introduce topic more interestingly, the best teaching strategy. अभी यहाँ पर प्रभा है जो उन्हें एनिमल्स फ्रेंड्स ये क्लास 3rd के बच्चों को पढ़ाना है, तो अगर वो टॉपिक को इंटरेस्टिंगली पढ़ाना चाहती हैं तो बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? ए, यूज़ अ चार्ट शोइंग पिक्चर्स ऑफ अ डिफरेंट एनिमल्स। बी, draw pictures of different animals on the blackboard. C, show a video film on animals and their usefulness. D, ask the student to see pictures of animal given in the text book. तो यहाँ पर 24th का आंसर होगा हमारा सी, शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूज़फुलनेस। अभी देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 3rd के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वो छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर आप उनको सिर्फ एनिमल्स बताओ, उनका हाउस कैसा होता है, व्हाट दे ईट, तो वो दिमाग में उतना वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को जब हम वीडियो दिखाते हैं तो वो उनको लिंक कर पाते हैं, उसको क्या कर पाते हैं, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, एंड ये बेस्ट मेथड होती है क्लास 3rd के बच्चों को अगर आप एनिमल्स टॉपिक पढ़ा रहे हो। यस, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 25th क्वेश्चन देखेंगे। इफ़ यू गो टू अहमदाबाद गुजरात बाय ट्रेन, देन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द वेंडर्स आर सेलिंग। सो अभी देखो, अब इस अहमदाबाद स्टेशन पे जब जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट किस चीज़ के लिए फेमस है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू अहमदाबाद गुजरात बाय ट्रेन, तो रेलवे स्टेशन जब जाओगे तो आप देखो कि जो वेंडर्स हैं, ए, ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस। बी, छोले भटूरे एंड लस्सी। सी, इडली चटनी एंड वड़ा चटनी। डी, पूरी शाक एंड ठंडा दूध। सो नॉर्मली आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन पूछा गया है,
तो यहाँ पर 25th का आंसर है ए। यस, गुजरात का ढोकला एंड चटनी तो फेमस है, उसी के साथ याद कर लो लेमन राइस। ओके, सो ढोकला विथ चटनी एंड लेमन राइस इज फेमस फॉर द गुजरात व्हेन द वेंडर्स आर सेलिंग नियर द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर डायग्नोसिस अ डॉक्टर says to a patient that there is less hemoglobin in his blood. Which of the following should he eat to make up the deficiency of iron? Blood group O is। तो यहाँ पर डॉक्टर के पास गए हैं, एक पेशेंट है, उनका हीमोग्लोबिन ब्लड में कम पाया गया। यस, सो डॉक्टर उन्हें क्या सलाह देंगे खाने के लिए? ए राइस शुगर आंवला, बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल स्वीट ऑरेंज, सी जैगरी लेमन टी, डी आंवला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैगरी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सभी मिलते जुलते हैं, बट जो सबसे सही जवाब है वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, आंवला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड जैगरी। यस, सो ये जो है, ये चीज़ें जब हम खाते हैं तो हीमोग्लोबिन ब्लड में जो है वो जल्द से जल्द बढ़ना स्टार्ट होता है और उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कम किया जा सकता है। इसलिए आंवला, हरी भरी पत्ते वाली सब्जियां और जैगरी गुड़, ये जो है ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन को जल्दी से बढ़ाने में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे। 27 While teaching the topic on air is everywhere to textbook on EVS 2, class 4 student Anjali plans to perform the take the student to a field trip, explain the concept through a specific examples, C use multimedia capsule to explain the concept, D ask probing questions related to the topic। अब एयर इज़ एवरीवेयर अगर बच्चों को पढ़ाना है, साइंटिफिक एग्जांपल से छोटे बच्चे हैं ये समझ नहीं पाएंगे, ये डेली लाइफ से लिंक करते हैं, तो अगर हम बोले तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को जब हम फील्ड ट्रिप लेके जाएंगे तो वो खुद एक्सप्लोर कर पाएंगे, खुद एंगेज कर पाएंगे, डेली लाइफ एक्टिविटी से लिंक कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो एयर इज़ एवरीवेयर सिखाने के लिए बेस्ट है। टेक द स्टूडेंट टू अ फील्ड ट्रिप, लेट देम एक्सप्लोर। तो यहाँ पर 27 का ए आंसर करेक्ट है। 28 देखेंगे। A good assignment in EVS should primarily aim at। तो प्राइमरीली हम क्या देखते हैं, गुड असाइनमेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से हम देखते हैं गुड असाइनमेंट को? फर्स्ट, रिवाइज द लेसन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, सी कीप द स्टूडेंट एंगेज एंड डिसिप्लिन, डी प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। यस, तो जो असाइनमेंट दिया जाता है, प्रोवाइड एक्सटेंडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। यस, अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स बच्चा जब ईवीएस कोई भी प्रोजेक्ट करता है, यस इफ़ यू आर गिविंग एनी प्रोजेक्ट असाइनमेंट, तो बच्चे के टॉपिक जाता है तो वो उसको उसके लेवल पे, थिंकिंग लेवल पे स्टार्ट करता है। ही यूज़ टू फाइंड द एविडेंस, एनालाइज, ही सर्चेज द इंफॉर्मेशन। तो इसमें बच्चे का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है एंड वो डिफरेंट उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिससे वो हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने का भी उतना समझदार रखता है। सो अगर आप इस असाइनमेंट जो है वो प्राइमरीली एम पे क्या करते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देने का, लेट देम गिव देम अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग बाय डूइंग। यस, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दीजिए, उनको खुद से करने का मौका दीजिए, तब वो सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, एज एन EVS टीचर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप टू अ जू शुड बी। अब EVS टीचर अगर आप हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? व्हाट विल बी ऑब्जेक्टिव, कि आप जो फील्ड ट्रिप लेके जा रहे हैं उसका मेन मुद्दा क्या है, आपका क्यों लेके जा, आप क्या हासिल करना चाहते हैं उससे? ए टू प्रोवाइड फन एंड एन्जॉयमेंट टू द स्टूडेंट्स। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि हम सिर्फ फन मज़ा मस्ती करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे थे कुछ तो करके ही आएंगे। बी टू हैव अ चेंज इन मोनोटोनी ऑफ रूटीन टीचिंग शेड्यूल। नहीं, मोनोटस टीचिंग के लिए वो तो टीचर प्रोजेक्ट यूज़ कर सकती है, वीडियोस दिखा सकती है, फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकती है, डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकती है। यस, सो मोनोटोनस रूटीन के लिए तो नहीं है बिल्कुल। सी टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, एंड डी इज़ टू सेटिस्फाई पेरेंट्स ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना हमारा मेन मोटो नहीं है, हमारा है कि बच्चा सीख पाए, बच्चा कैसे सीख रहा है, वो कितना ग्रास्प कर पा रहा है, वो कितना लिंक कर पा रहा है। यस, सो हमारा मेन जो है चाइल्ड सेंटर्ड है। सो अगर हम सही मायने में देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है।
यस, हम कब से वही बोले जा रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग है, एक्टिव लर्निंग है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये मेन मोटो रहता है। इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप, हम कहीं जाते हैं तो वो क्या रहता है, बच्चा खुद एक्सप्लोर कर पाता है, ऑब्जर्वेशन स्किल उसकी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो डेवलप होती है। सो प्रोवाइड द एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू द स्टूडेंट्स। सो 29 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ जाने के चांसेस भी है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 30, द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज। ये आप सभी ने नोटिस किया होगा कि बर्ड्स जो है वो उनके जो नेक है उनको लगातार ऐसे मतलब बहुत झटके से आगे पीछे करते रहते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? दे कैन फ्लाई, बी द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, सी the birds have small eyes, D their ears are covered with feathers। तो इसका राइट आंसर है, बहुतों को पता नहीं होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। जो बर्ड्स ये मूवमेंट करते हैं उनके नेक के झटके से आगे पीछे, ये इसलिए होते हैं क्योंकि बर्ड्स को जो कुछ देखना रहता है, तो जैसे अभी हमारे आई के लेंसेज है, यस, हम बिना गर्दन हिलाए भी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे से देख सकते हैं। यस, वो क्या है, मूवेबल है। बट जो बर्ड्स के आइज़ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, दे कांट मूव। तो अगर बर्ड्स को कहीं देखना है तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी पूरी नेक को घुमाना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है। सो दैट्स वाई हम वो बर्ड्स के नेक में मूवमेंट्स देखते हैं। सो ये याद रख लीजिए आप, 30 का आंसर है बी, द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड। तो वीडियो के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और टीईटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं सब क्वेश्चंस, पेपर्स एंड नोट्स मिलते जाएंगे।